Yes. Good morning, everybody. Can you hear? Can you hear me? Good morning, sir. Yes, sir. Okay. See, yesterday we have already started, but there are very few students were there. So we will restart it again. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Electrochemistry is a chapter which belongs to paper 1 of the chemistry, and it is a 4th chapter, I think so. It is a 4th chapter in this portion of our 12th chemistry. So let us begin. I think so. We have to go to the page number. No, it's the 5th chapter. It is the 5th chapter of your chemistry. Okay, so we'll go to the page number 150 directly. Page number 100. Okay, so we have opened this chapter. Okay, so everybody should have a pen and paper along with you. You should, whenever you come for a lecture, you should always have pen and paper. Remember that, because I am going to open your videos. I'm going to see that how many people are going to write, like how many people are writing. Okay, now let us open the board. Let us open the board. Okay, I've opened the board. So let us continue. Now this chapter, electrochemistry, deals with two forms of energy. You know that naturally we have many forms of energy which are available directly. हमारे नेचर में बहुत सारी energies है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, if you see whatever the energy we are having in our nature, which are free energy, like for example, solar energy, the sunlight which we are getting, okay, it is a form of energy. We can convert this solar energy into many other energies, and then we can utilize it. Then we have a wind energy. We have a wind whenever any storms comes or any hurricanes come. So very fast the wind flows. So with this wind, what we can do, we can allow the blades of the big fans, the windmills, can be run on it. Understood? And then we can generate the electricity. So the electricity is not a readily available form. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचर में रेडिली अवेलेबल नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं कि जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. वेरी गुड. अच्छा, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए बहुत काम की चीज है? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस? यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट. कल भी मैंने डिस्कस किया था कि देखिए अगर 1 घंटे के लिए भी लाइट पूरे बॉम्बे की, पूरी इंडिया की चली जाती है तो कितना नुकसान हो जाता है, कितनी जान माल का नुकसान हो जाता है. तो हेंस इट इज अ वेरी बेसिक नीड. पहले ये बेसिक नीड नहीं थी, लेकिन नाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज बिकम इट बिकम्स अ बेसिक नीड फॉर आवर सर्वाइवल. ठीक है. ओके, नाउ ये जो चैप्टर है, लिखो सब लोग लिखो. राइट द हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. राइट द हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. Now, if you read the heading of this chapter, you will understand that this chapter is talking about the two different forms of energy. It talks about what? It talks about two different forms of energy. One form of energy is chemical energy, and one form of energy is what? Electrical energy. Okay, now if I suppose ask you, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दोनों form of energy के applications हमारी लाइफ में हैं कि नहीं है? Do we use them in our life? Yes, we use chemicals. Yes. And one of the best example of chemical energy is the food, the fuels, है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, तो ये केमिकल एनर्जी है जिसके कंज्यूम होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कंज्यूम होने के बाद गाड़ियां चलती हैं, एरोप्लेन चलता है, सारी जितनी भी चीजें जो फ्यूल पे चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि उसकी जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में. ठीक है, तो ये तो हमने देखा है. अच्छा, उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे तो उसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है. अच्छा, ये केमिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों के क्या एप्लीकेशन सेम है क्या अलग अलग है?
यस, दोनों के एप्लीकेशन, दोनों के जो फंक्शंस हैं क्या सेम हैं क्या अलग अलग हैं? नो, इट इज डिफरेंट। क्या हम केमिकल से क्या हम डायरेक्टली फैन को रोटेट करवा सकते हैं या इसी को चला सकते हैं? नहीं, वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो रन करेंगे। तो हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एप्लीकेशंस दूसरे हैं और केमिकल एनर्जी के एप्लीकेशन दूसरे हैं। इसलिए हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है ताकि हम अपने बहुत सारे अप्लायंसेस, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे गैजेट्स को चला सके। ठीक है, अच्छा, नाउ नेचर में कौन सी चीज अवेलेबल है? केमिकल अवेलेबल है कि इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है? केमिकल अवेलेबल है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? कैन वी कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल? Can we convert chemical into electrical, or can we do the reverse also? Can we convert electrical into chemical? So, yes, so I can say यहाँ से आप 2 एरो और बना दो। चलो 2 एरो और बना दो। एक में लिखो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एक में लिखो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, और दूसरे में लिखो फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। कम ऑन, राइट इट। ओके, लिखा सबने? Yes. How many are there? Okay. Salan is there. Okay. Now please pay attention. Now this chapter is very easy. I am going to explain you in a much better form so that you can be able to understand. Acha, now come on, tell me, do you give me some examples in which electricals converts into chemical energy? The best example for this conversion is electrolysis. The best example of this conversion is what? Electrolysis. Is anybody heard about electrolysis? क्या किसी ने electrolysis के बारे में सुना है? I think so in the lower class you have heard, है ना? What is electrolysis? Electro means electrical, electricity, and lysis means breaking. So it is a process in which any chemical compounds are broken by passage of electricity, by passing of what? Electricity. For example, suppose if I give you, explain me the electrolysis of NaCl. Electrolysis of NaCl. Can you explain this, or can you write the total process of this? What do you have to do? Electrolysis of NaCl solid. So yes, write along with me. Everybody going to write along with me. चलो ये जल्दी करके बताओ, हाँ करके बताओ। पहले मुझे तो आप उसका डायग्राम बताओ, उसके बाद जो रिएक्शंस हो रहा है पूरे अंदर वो सब बताओ कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। फिर दोनों रिएक्शंस को आपस में कंबाइन करो और नेट रिएक्शन फॉर्म करो, और मुझे इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है आपको वो मुझे बताओ। कम ऑन। अच्छा, ये NaCl को ब्राइन कहते हैं। इसको हम लोग, इसका जो सोल्यूशन है ना, उसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। रिमेंबर दैट NaCl इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द इनिशियल सोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्राइन। देखिए, इसलिए ना मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये करने के लिए, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को ओपन करते हैं ना टेक्स्ट बुक में, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है? कैन यू रिकॉल? क्या आप याद कर सकते हैं? क्या आप वो सारी चीजें जो पहले पढ़ाई जा चुकी है उसको क्या दोबारा आप याद रख सकते हैं? इसमें ये पूछ रहा है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हेंस you must know what is redox reaction, without which you can't able to understand this chapter. Getting it? Sadia is there or not? Sadia Ikrarun is there? Yes sir. Okay. Yes sir. Also there. Okay. तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, मैंने सोचा कि आज आए कि नहीं तुम लोग। चलो ठीक है। Mir is there? Oh, Mir is not there. He's going to miss again. Alfia is there. Okay. Alfia, just give a reminder to Mir. Suppose if he is not awake. Yes sir. Yes, we'll go to the electrolysis of NaCl. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Yes, Arsalan, what we have to do first, we have to draw a electrolytic cell, and in this electrolytic cell what we have to do, we have to keep the NaCl. You know, everybody have seen NaCl. सबने NaCl को देखा है। आपने देखा है कि NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, आपसे अगर मैं एक और बात पूछूं, क्या कोई सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होता है? नहीं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से फॉर्म में होगा? वो
इलेक्ट्रोलाइट Liquid या तो form. एक्वस फॉर्म में होगा या तो मोल्टेन फॉर्म में होगा, क्योंकि जब हम इसको एक्वस या मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका जो मॉलिक्यूल है ना ये ब्रेक हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूल ब्रेक होना का मतलब क्या हुआ कि इसके जो बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, है ना, वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हेंस इसमें जो आयंस है ना वो सेपरेट हो जाएंगी, आयंस फ्री हो जाएंगी। तो इस तरीके सॉल्यूशंस के अंदर फिर हमारे पास Na+ और Cl- आयन होंगी। तो अब यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हम इसको जो है वो हीट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में जब चला गया ना तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो खत्म हो जाएगा। it will destroy it, and hence the two ions will be separated. This ion become free. So hence in the reaction mixture we will have Na+ ion and the Cl- ion. तो हमारे पास Na+ ion होगा और क्या होगा, Cl- ion होगा। अच्छा, तो ये तो हो गई रिएक्शन के अंदर की बात कि हमारे पास इनिशियल में पहले NaCl सॉलिड था, हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद वो NaCl लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद फिर वो आयनाइज हो गया, और उसमें से दो आयंस प्रोड्यूस हुई, Na+ और Cl- आयन। अब मैंने इसके अंदर क्या प्लेस किया, इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए मैंने इसके अंदर, और इस इलेक्ट्रोड को मैंने जो है वो एक्सटर्नल EMF सोर्स से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो बड़ी लाइन है वो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो जिस इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे इसको। यस अर्शिमा, we call this to be as what, cathode, and the positive electrode is called as anode. Now you know what happens, as soon as suppose I switch off, sorry, if I switch on this button, then the electricity will start flowing and this negative electrode becomes negatively charged. अब ये negative pole बन जाएगा, वो positive pole बन जाएगा। तो जैसे ये negative और positive pole बन जाएगा तो ये जो ions होंगे ना ये attract होंगी, तो सारी positive ion किस तरफ जाएंगी, सारी पॉजिटिव आयन इस कैथोड की तरफ करके एक्यूमुलेट हो जाएंगी। they will all get accumulated, aggregated over here, और जितनी भी क्लोराइड आयन होंगी ना they all will aggregate over here, they all will, जैसे सुबह सुबह सारे स्टेशन पे जाते हैं ना लोग ऑफिस वाले, वैसे यहाँ पे भी हाल होगा कि सारे माइग्रेट करेंगे, या आयंस रिस्पेक्टिव ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये माइग्रेट करेंगे और वहां जाकर के जमा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि ये जमा होने के बाद क्या होगा, what happens at the cathode and what happens at the anode. So at the cathode, which is the negative electrode, I will write it as at the negative electrode, that is much better form. At the negative electrode is called as, in the electrolysis our negative electrode is cathode. Our negative electrode is what, अच्छा इस ये आप लिख रहे हैं मेरे साथ, जस्ट ईमानदारी से बोलो, सब लोग लिख रहे हैं ना, ये डायग्राम आपने Yes, बनाया है क्या, Yes, Arshima sir. and all the Yes. other people, Munawwara, Alfia, Kayam, he is there in Yes, front sir. of me, so I can see what he is doing, but you are not there, therefore I can't see what you are doing. But I believe that you are doing what I am saying. डायग्राम बना लिया सबने? Yes, sir. ओहो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान चाहिए, एवरी फुल कंसंट्रेशन। आपके आजू बाजू जो भी है सबको दूर भगा दो अपने पास से, सिर्फ आप और मैं, बस और कोई नहीं चाहिए, एंड द स्टडीज, राइट। तो अब ना हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए, एक हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम दो कॉलम बनाएंगे, उसके बीच में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और क्या है, चलो कॉलम बना दो दो, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कहेंगे, कैथोड। कैथोड। उसको क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये अपनी पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट याद रखना कि जो कैथोड होगा वहां पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, मैंने कल भी बताया था, क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर CR विल बी नेवर सेपरेट, C और R कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जहां कैथोड होगा वहां रिडक्शन होगा, या जहां रिडक्शन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम हमेशा क्या बोलेंगे, कैथोड। हैव यू अंडरस्टूड? एंड जहां एनोड होगा वहां पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जहां एनोड है वहां ऑक्सीडेशन है,
और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? एनोड। Anode. तो नेवर Anode. फॉरगेट दिस टू कॉम्बिनेशन, सी विथ आर, हम लोग उसको सेंट्रल रेलवे कहते हैं ना, सी और आर को अगर आपको साथ में बोलना है तो सेंट्रल रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल कि सी इज अलोंग विद द आर, है ना। तो सी आर वेरेवर कैथोड दैट विल बी ऑलवेज रिडक्शन, एंड उसको याद करने का तरीका क्या? ए ओ, अंडरस्टूड? ए फॉर एनोड एंड O for oxidation. So wherever anode is there, there will be always oxidation. और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लिखिए क्या आपने ये पॉइंट? यस, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखिए ये पूरा चैप्टर ना रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ना इतना डीप में लेके जा रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिडक्शन मींस व्हाट? हु कैन से व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? Who can say what do you mean by reduction with respect to electrons? Addition of With electron. respect to electrons, I am talking about the Gain of electrons. वेरी गुड। कल आप थे ना, कल लेक्चर में जो था वो फटाफट बोलेगा मुझे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? Gain of electrons. और ऑक्सीडेशन मतलब? ऑक्सीडेशन मतलब Loss of electrons. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब मुझे ना आपको कम से कम 3 एग्जांपल देने पड़ेंगे। कितने एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको? अच्छा चलो 3 नहीं, 2 एग्जांपल मुझे दे दो। एक न्यूट्रल एटम को लेकर के और एक आयन को लेकर के, 2 एग्जांपल दोनों प्रोसेस में आपको मुझे देना है। मेरी बात को पहले आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में 2 एग्जांपल चाहिए। कितने एग्जांपल चाहिए? 2। और दोनों के अंदर एक में जो इनिशियल, जो मेरा पहला एग्जांपल है उसमें इनिशियल में जो स्पीच आप ले रहे हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। ये पहला एग्जांपल, ये कंडीशन में शर्त लगा रहा हूं। और दूसरा जो एग्जांपल जो मेरा रहेगा उसमें मेरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा जो एग्जांपल रहेगा उसमें जो इनिशियल स्पीशीज आप ले रहे हैं जिसको आप रिड्यूस करने वाले हैं वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? आयन के फॉर्म में, राइट। तो अब मुझे बताओ कि कौन ये सवाल को कौन पूरा कर सकता है, कौन जवाब दे सकता है? इन दोनों के अंदर ना, इन दोनों कैटेगरीज में चाहिए मुझे, रिडक्शन के अंदर भी और ऑक्सीडेशन के अंदर भी। सवाल समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं एक एग्जांपल देता Yes, हूं। sir. हाँ, अच्छा बताइए कि यहाँ पर अगर मुझे रिडक्शन का एक एग्जांपल देना है तो मुझे जो स्पीशीज लेना है वो न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो न्यूट्रल फॉर्म में कौन होता है बताइए? न्यूट्रल फॉर्म में कौन होता है? एटम और मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, Atoms. मानते हैं, है ना? एटम और मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, एटम कौन फॉर्म करता है? मेटल्स। मेटल्स एटम फॉर्म करते हैं, इसलिए आप कभी भी सोडियम को रिएक्शन में लिखेंगे आप सोडियम को ऐसे एटम फॉर्म, ऐसे एटम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिखेंगे किसी भी रिएक्शन में तो हाइड्रोजन को आप ऐसा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है एंड इट कंटेन्स 2 एटम्स। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. अब देखिए सवाल के अंदर सवाल पैदा हो रहा है। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि किसकी टेंडेंसी क्या होती है? देखिए सुबह में हमारी टेंडेंसी क्या होती है? चाय पीने की। दोपहर का टाइम हो जाता है तो क्या होती है? खाना खाने की। तो ये टेंडेंसी अपने आप डेवलप होती है कि कोई आके आपके कान में बोलता है ये अभी आपका चाय पीने का टाइम हो गया? नहीं, ये टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, टाइम को देख करके, माहौल को देख करके, वक्त को देख करके। तो ये टेंडेंसी स्पॉन्टेनियसली खुद जनरेट होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिनके अंदर टेंडेंसी अपने आप उनके फितरत में होती है, उनके नेचर के अंदर होती है। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? हु रेडिली अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड हु रेडिली अंडरगोस रिडक्शन? यस, Metal undergoes oxidation. आंसर प्लीज। Non-metal undergoes reduction. ओके, वेरी गुड, यस। सो आंसर इज कि जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की होती है और जो नॉन मेटल होता है उसकी टेंडेंसी रिडक्शन की। एक कुर्बानी के लिए तैयार है और दूसरा दूसरे को कुर्बान करने के लिए तैयार है। मतलब एक अपना खुद माल उठा रहा है और दूसरा उसको गजब कर रहा है ना, हासिब है। तो एनी हाउ, तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? नॉन मेटल्स। यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो किसका लेंगे? हम नॉन मेटल्स का। और यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो किसका लेंगे? मेटल्स का। Metal. तो हम ये सपोज अगर मैं नॉन मेटल को एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सपोज अगर मेरे पास ये एटम जो है वो सपोज नॉन मेटल है, सपोज ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या फॉर्म करेगा? कैटायंस के एनायंस? Anions.
Anions. वेरी गुड। देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जो नेचर में होगा वही चीज होगा। आप पानी पियेंगे तो आप क्या होंगे, वेट होंगे ना, मतलब आपके जो अंदर का इंटरनल जो ऑर्गेन्स है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिसकी जैसा नेचर होता है वैसा उसके ऊपर चार्ज आता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो जो इसको लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इतना तो बेसिक आप समझ सकते हैं। तो इसमें -n चार्ज आ जाएगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. अगर मैं मेटल को रिप्रेजेंट करूं कैपिटल M से, तो मेटल की टेंडेंसी क्या है कि मेटल सॉलिड होता है ना, ये तो अपन उसको गैस ले लेते हैं, ठीक है। मेटल सॉलिड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेटल जो है ये एटम के फॉर्म में है। वहां पे जो नॉन मेटल था वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, और यहाँ पे मेटल एटम के फॉर्म में है। तो जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सपोज ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, तो इस पे जो चार्ज आएगा, इस आयन पे जो चार्ज आएगा वो +n का है ना, +n चार्ज आएगा इस पे। तो Yes, ये जो sir. मेटल आयन जो फॉर्म हो रही है ये पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म हो रही है ना, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। यस और नो? Yes. यस ना। तो अब ये जो मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट, कैटायंस। अंडरस्टूड टिल दिस इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, अब sir. आपको इसके नीचे 2 एग्जांपल देने, 2 एग्जांपल देकर के मुझे एक्सप्लेन कर दो। चलो 2 एग्जांपल दो, सेम फॉर्मेट तो मैंने लिख दिया है, आपको सिर्फ 2 एग्जांपल बोलना है। चलो पहला मैं लेता हूं किसका, हाइड्रोजन छोड़ करके, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इवन दो इट इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल के होने के बावजूद भी हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है वो नॉन मेटल से की जो टेंडेंसी से अलग है। भले ही गैसेस फॉर्म है लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? यस। अब ये क्लोरीन को लेकर के ये इक्वेशन को पूरा करो। शो मी द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, कम ऑन। Chlorine molecule will accept how many electrons and what ions it's going to form? Please, I want answer. गुड। हाँ, तो यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? हु कैन से? मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटम। Yes, 2 electrons. it will take 2 electrons and it will form what? After gaining 2 electrons, chlorine molecule become 2 chloride. अरे ये इक्वेशन सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. प्लीज अपने दिल से बोलो, नहीं समझा तो आप सीधे बोल दो सर नहीं समझा, है ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको सबको समझ में ही आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता है, तो आप बोलो कि नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना है? 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? 2H7 है। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन के पास बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो हेंस ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। तो जब आप एटम ले रहे हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने एटम है बोलिए? 2. आपको से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। जब एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के एक क्लोराइड आयन फॉर्म कर रहा है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्लोरीन एटम है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 क्लोराइड आयन फॉर्म करेंगे ना। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? Reduction. Reduction. Suppose अगर मैं आपसे ये बोलूं कि show me the formation of 1 chloride ion. Show me the formation of 1 chloride ion. What will do? What you will do? Suppose if I ask you, show me the formation of 1 chloride ion. अभी यहाँ पे इस रिएक्शन में आपने कितना मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन शो कर रहे हैं आप यहाँ पर? 2 moles of. हाँ, तो अगर मैं आपको ये कहता कि चलो you show me the formation of 1 mole of chloride ion, तो आपको क्या करना पड़ता? I want answer, please. So I have to divide the whole equation by. I have to divide the whole equation by 2, no? So suppose if I want to show for the 1 mole of chloride ion, if I want to show for the 1 mole of chloride ion, then I have to divide the whole equation by 2. So it means that I have to take half moles of chlorine molecule gas will accept 1 mole of electron and will form 1 mole of chloride ions, na?
Have you understood? Yes, sir. Very good, very good, very good. अच्छा, ये अपना एक एग्जांपल पूरा हो गया. Now we go for the second example. Second example में कहता हूँ कि चलो, you take oxygen molecule. You take what? Oxygen molecule and show the reduction. Come on, show the reduction. Oh, so let me see how many people can do. Oh. So are you ready for it? Come on. Who can do it? One fellow is distressed. He's in distress. So first of all, let us understand what is the capacity of oxygen atom. Oxygen कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है to complete its octet state? Yes, कोई जवाब? अरे भाई, आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मालूम है? कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8. वेरी गुड, 8. सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? 2,6. 2,6. तो इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो hence if you take oxygen atom, then it will take 2 electrons, and after taking the 2 electrons it will form the oxide ion. That is 2 minus 1 minus 2. It is one and same thing. लेकिन आप मुझे बताओ कि aqueous solution में क्या ऑक्साइड आयन एग्जिस्ट करता है? अगर मैंने aqueous solution लिया पानी में, क्या आपको पानी में कभी भी O minus 2 आयन दिखता है क्या? No. क्या No, दिखता sir. है? No, sir. क्या दिखता है? OH minus. वेरी गुड, OH माइनस आयन दिखता है. तो रिमेंबर दैट, क्योंकि नॉर्मली जो आयंस होता है वो या तो मोल्टेन फॉर्म में होता है या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है. तो यू हैव टू ऑलवेज सी द स्टेबल फॉर्म ऑफ दैट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो द स्टेबल फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड आयन इज नॉट O-2, बट इट इज एन हाइड्रोक्सिल आयन. बट इट इज व्हाट? इट इज अ हाइड्रोक्सिल आयन. तो होता है क्या है कि ये O-2 आयन फिर H+ आयन से कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेगा? OH माइनस आयन ना, राइट? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मेरा इंटरमीडिएट कौन सा है? ऑक्साइड एप्सिलॉन इंटरमीडिएट है. तो इसका मतलब क्या हुआ? O एंड सपोज, अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं इतना एकदम डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा. क्या याद रखना पड़ेगा? कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन का जो न्यूट्रल फॉर्म है वो क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और इसका जो चार्ज फॉर्म है, तो उसका जो चार्ज फॉर्म है वो O-2 नहीं है पानी के अंदर, बल्कि क्या है? -1. OH-1 हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है. तो आप इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करके आप इसको रिडक्शन फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. हु कैन कंप्लीट दिस? देखिए, मैंने आपको ना इसका दोनों फॉर्म बता दिया. ऑक्सीजन का न्यूट्रल फॉर्म भी बता दिया, डिस्चार्ज फॉर्म भी बता दिया, और इसका चार्ज्ड फॉर्म भी बता दिया. चार्ज फॉर्म में ये ऑक्साइड आयन के फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये कौन से फॉर्म में? हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में. तो चलो इसको बैलेंस करो. कोई भी रिएक्शन 3 तरीके से बैलेंस होना चाहिए. मैंने उसको पहले भी काफी बताया भी है, जो लोग मेरी लेक्चर में कंटिन्यूस आते हैं, कि कोई भी रिएक्शन 3 तरीके से बैलेंस होना चाहिए. वो कौन सा तरीका है? पहला तरीका ये है कि वो एलिमेंटली बैलेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एलिमेंटली. मतलब जो एलिमेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, सेम एलिमेंट आपको राइट हैंड साइड भी दिखना चाहिए. दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है? कि एटॉमिकली बैलेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एटॉमिकली. मतलब जितने एटम्स आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सेम नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट हैंड साइड भी होना चाहिए. मतलब जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व इस रिएक्शंस के अंदर, उन सारे एलिमेंट्स का जो एटम्स है दोनों तरफ क्या होना चाहिए? दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी वो बैलेंस इक्वेशन बनेगा. और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो क्या है? कि इक्वेशन इलेक्ट्रिकली भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली भी क्या होना चाहिए? Balance. Balance. What do you mean by electrically? Electrically मतलब the total charge on the left hand side and the right hand side should also be same. अगर यहाँ पे x चार्ज आ रहा है, सपोज प्लस x चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस x चार्ज आना चाहिए. या जो भी चार्ज दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मतलब दोनों तरफ इक्वल चार्जेस होना चाहिए. तब जाकर के वो रिएक्शन, पर्टिकुलर जो रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीटली बैलेंस्ड होगा. Have you understood? तो
तो अब इसको आप बैलेंस करो, चलो बैलेंस करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन एलिमेंटली बैलेंस है? यस मिस, यस मिस्टर। No, sir. So what is not balanced? What you can't see on the left hand side? Which element you can't see on the left hand side? Hydrogen. So you have to introduce the hydrogen on the left hand side by adding water on the left hand side. अगर मैं water लिख देता हूँ left hand side में, तो मैं हाइड्रोजन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो अब ये एलिमेंटली क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्लियर? नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पैरामीटर। एटॉमिकली क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यस, यू कैन से। No, sir. एटॉमिकली नहीं बैलेंस है। अगर हम लोग देखें कि इस पूरे इक्वेशन में दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देख लेता हूँ और राइट हैंड साइड देख लेता हूँ। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं मुझे और 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में अभी फिलहाल एक ही दिख रहा है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो? यस, यू कैन से। तो मैं ये जो ऑड है ना, ये ऑड नंबर है, तो इस ऑड को इवन करने के लिए मैं इसके आगे क्या लिखूंगा? 2। तो जैसे मैंने 2 लिख दिया ना, तो अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? 4 हो गई। देखो भाई, ऑक्सीजन भी 4 है कि नहीं है, और हाइड्रोजन भी क्या है? 4 है। Yes, sir. अगर मैं राइट हैंड साइड में 4 लिख दूं, तो आप ये तो बैलेंस हो गया ना एटॉमिकली देखो बैलेंस Yes, हुआ sir. कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये मैंने दूसरा पैरामीटर भी मैंने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन इलेक्ट्रिकली बैलेंस है क्या? यस, कैन एनी टेल मी कि दिस इक्वेशन इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस है या नहीं है? No, sir. नहीं है। कैसे पता लगा कि आपको कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस नहीं है? तो आप चार्ज देखेंगे। अच्छा, ये जो पहला रिएक्टेंट है आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, मतलब मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 होता है। वाटर है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो ये वाटर भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो दोनों पे चार्ज भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना है? 0. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो OH माइनस आयन है, ये आयनिक फॉर्म में है। ये जो एक ग्रुप ऑफ आयनिक कंपाउंड आयन है जिसमें नेट चार्ज कितना है? -1 का है। तो एक OH पे चार्ज -1 का है, तो 4 पे टोटल कितना होगा चार्ज? -4. -4 का। तो क्या आप देखिए कि अब ये जो नेट चार्जेस दोनों तरफ आ रहे हैं, क्या वो दोनों बराबर हैं? No, sir. तो हेंस चार्ज को बराबर करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड किसे लेकर के आएंगे? किसे लेकर के आएंगे? Electrons. वेरी गुड, क्योंकि आप रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? -1. तो आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेगे? 4. जब आप 4 करेंगे तो टोटल चार्ज आप कितना आ जाएगा? -4. तो आप -4 और -4 दोनों तरफ नेट चार्ज इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैव यू अंडरस्टूड? तो हम इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस प्लस 2 moles of water, 2 moles of water liquid plus 4 electrons, right, undergoing reduction to form 4 moles of OH minus ion aqueous. Have you understood this? Yes, sir. So this is Yes, again an sir. example of what? Reduction. देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीजें बोली थी कि मुझे रिडक्शन 2 फॉर्म में चाहिए, फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग विथ व्हाट? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो हमने ये जो दोनों एग्जांपल लिखा है, इसमें जो हमने जो बिगिनिंग, जो हमारा जो इनिशियल जो कंपाउंड हमने लिया था, या जो इनिशियल हमने स्पीशीज लिया था, वो दोनों न्यूट्रल फॉर्म में है कि नहीं है? पहले हमने क्लोरीन लिया था, फिर बाद में हमने ऑक्सीजन लिया, और हमने बोला कि जो रिडक्शन है वो कौन किसकी टेंडेंसी है? नॉन मेटल्स की है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों न्यूट्रल फॉर्म में है, और इन दोनों को हमने रिड्यूस किया। इन दोनों को हमने क्या किया? Reduce. ओके, सबका लिख के हो गया? लिख लो जरा जल्दी जल्दी।
फिनिश? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो मेरा जो सवाल पहले था कि मैंने क्या पूछा था आपसे कि मुझे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आप ऐसे दो एग्जांपल लिखिए जहां पर इनिशियल जो स्पीशीज है वो न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए, है ना, दोनों जगह पे न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है वो इस कंडीशन को पूरी कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो दो न्यूट्रल स्पीशीज लिया, एक क्लोरीन लिया और एक ऑक्सीजन लिया। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑक्सीडेशन में आता हूँ। तो ये तो मैंने दोनों बता दिया ना, देखो ये भी क्लोरीन भी न्यूट्रल था, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल था, दोनों को मैंने रिड्यूस किया और ये दोनों आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये जो है क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ और ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ऑक्सीडेशन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन में मुझे यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करना है कि मुझे एक ऐसी स्पीशीज लेना है जो न्यूट्रल फॉर्म में हो और ऑक्सीडाइज हो रही है वो। तो यहाँ पे मैं इस न्यूट्रल स्पीशीज को क्या 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 कौन सी चीज लूंगा? ये Sodium. I will take the examples of metals, right? तो मेरा पहला एग्जांपल है वो क्या है? सोडियम है। तो सोडियम सॉलिड है और आप जानते हैं कि जो मेटल्स होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर के शेल में, जिसको वो लूज करना चाहता है, क्योंकि उसको लूज करने के बाद उसको ऑक्टेट स्टेट मिल जाएगा। तो ये सोडियम जो है ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑक्सीडेशन। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम का ले लेता हूँ। तो मुझे बताएगा कि एल्यूमिनियम विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? यस मीर? Yes. How many electrons aluminum will going to lose? 3 electrons, no? 3. Very good, very good. 3 electrons. तो यहाँ पे भी मैंने अदर साइड भी जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज को लेकर के मैंने दो एग्जाम्पल बता दिए ऑक्सीडेशन के। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी। सबको ये चारों रिएक्शन समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आपने अगर गौर किया होगा ना तो इन चारों रिएक्शन में हम लोग ने we have moved from neutral species to a what? Charged species. We have moved from neutral species to a what? Charged species, है ना, दोनों एग्जाम्पल में, चाहे आप दोनों तरफ देख लीजिए। तो हमने इन दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर जो एग्जाम्पल पेश किए हैं, जो एग्जाम्पल हमने प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर, इनमें अगर आपने गौर किया होगा तो इनमें क्या हो रहा है कि हम न्यूट्रल स्पीशीज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बोलो? Charge species. तो आपने लिख लिया कि इसको लिख लो, फिर अपन दूसरे फॉर्म में चलते हैं, दूसरी कैटेगरी में चलते हैं। देखिए ये सारी चीजें ना बेसिक है, जब तक आप ये सब नहीं समझेंगे ना ये चैप्टर नहीं समझ सकते, चाहे कोई कितना भी बढ़ा ले आपको, ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि पूरे चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन है, पूरे चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शंस है। इसलिए तो देखो चैप्टर के बिगनिंग में इन्होंने सबसे पहला जो सवाल उठाया, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं समझ में आएगा आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होगी, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं सिर्फ एक ही स्पीशीज। So now we are going to take the examples of charged species and we will convert and we will allow these charged species to undergo reduction and oxidation. So can you tell me which charged species will undergo reduction and which charged species will undergo oxidation? Cations. इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे वहां पे हमने जो न्यूट्रल स्पीशीज लिए थे उसमें हमने क्या लिए थे? नॉन मेटल्स लिए थे, और नॉन मेटल्स कन्वर्ट हो रहे थे किसके अंदर? They are undergoing reduction and they are forming a what? They are forming a negatively charged ions, है ना। और ऑक्सीडेशन में हमने क्या लिया था? मेटल को लिया था, और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या फॉर्म कर रहे थे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ना। तो अगर हमें यहाँ पर चार्ज्ड स्पीशीज लेना है और उसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर हम कौन सा चार्ज स्पीशीज लेंगे? कैटायंस लेंगे कि एनायंस लेंगे? आई टेक कैटायंस और एनायंस। यस, हु कैन से? Cations. Who will undergo reduction? Cation will undergo reduction or anion will undergo reduction? Anion. Oh, anion is negatively charged. Can a negatively attract negative? Can a negative charge will again take a negative ion, negatively charged electrons? No, sir. क्या ये Cation. मुमकिन है? ये तो इंसानों में मुमकिन है, लेकिन नेचर में तो मुमकिन ही नहीं है, है ना। Negative will never attract. Understood? So which charge species you want to take? Yes. Who will undergo reduction? Cation or anion? Cation.
Cations, very good. So suppose if I have a cations, which suppose in general if I represent this by m plus n, है ना, अगर मैं m plus n ion से इसको represent करता हूँ, तो it will take how many number of electrons? N number of electrons, and it will undergo reduction to form metal solid. मतलब उसका जो reverse form था वो यहाँ पर क्या बनेगा? reduction. समझे क्या? इससे पहले हमने क्या लिया था? वहां पे हमने न्यूट्रल स्पीशीज लिया था और उसको कन्वर्ट किया था, उसको कन्वर्ट किया था हमने आयनिक फॉर्म में, है ना, कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कैटायनिक फॉर्म को एग्जांपल में लेंगे, इनिशियल फॉर्म कैटायनिक का लेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के रिड्यूस होंगे और फिर वो मेटल एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यस और नो? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सपोज अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का ले लेता हूँ, सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो हु कैन से व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन? What is the charge on magnesium? +2. Plus It 2. will take how many electrons? 2 2 electrons. electrons. And it will undergo reduction to form magnesium solid. तो hence reduction में हमने दो तरह के एग्जांपल बताए, एक न्यूट्रल से चार्ज फॉर्म में, एक चार्ज फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल से चार्ज फॉर्म में हमने जो कन्वर्जन किया था उसमें हमने नॉन मेटल्स लिया था और उनको एनायन में कन्वर्ट किया था। लेकिन जब हम चार्ज फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म में जा रहे हैं तो वहां पे हमने एग्जांपल में क्या लिया? कैटायंस लिया, और वो कैटायन जो है वो न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते हैं कितने को समझ में आया। दूसरा एग्जांपल में सपोज मैं हाइड्रोजन आयंस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? चलो बोलो क्या होगा? +1 electron. हाइड्रोजन का जो स्टेबल फॉर्म है वो मॉलिक्यूल है कि एटम है? Molecule. वेरी गुड। क्या फॉर्मूला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का? H2. लिक्विड है कि गैस है? Yes. वेरी गुड, गैस है। और हाइड्रोजन आयंस हमेशा एक्वा सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये हाइड्रोजन आयंस, अगर इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करूंगा और इसको कैसे बैलेंस करूंगा? तो सबसे पहले मुझे इसको एटॉमिकली बैलेंस करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मैं 2 हाइड्रोजन देख रहा हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2. 2। तो एक हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पर। तो दो हाइड्रोजन आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे? यस, आई वांट आंसर। 2 हाइड्रोजन आयन 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स। नो, आर यू गेटिंग इट? हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलो, हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल दे दिए, जहां पर हमने ये जो दोनों एग्जांपल है सब रिडक्शंस के ही एग्जांपल्स हैं। पहले हमने जो है वो न्यूट्रल से चार्ज स्पीशीज का एग्जांपल दिया था, अभी हमने चार्ज स्पीशीज से न्यूट्रल स्पीशीज का एग्जांपल दिया। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। यस, मीर और एनीबडी कैन टेल मी द आंसर कि यहाँ पे मैं कौन सा आयंस लूंगा? व्हिच आयन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन ओवर हियर? कैटायन और एनायन? Anion. वेरी गुड। देखिए ये आपकी ना ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर बहुत आसान पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर एनायंस देता हूँ, जिसको मैं अगर सॉरी ओके, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, तो जनरल फॉर्म कैसे लिखूंगा? सपोज अगर मेरे पास ये x माइनस n नंबर की आयन है, तो ये क्या करेगी बोलो? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी कि गेन करेगी? Loss करेगी. अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी भाई? कितना? 1 electron. N electrons. वेरी गुड। अगर सपोज मैं 2 ले लेता हूँ और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे हो जाएगी? x2 and is going to lose n number of electrons and this will be called as yes or no? Yes, sir. तो आपने मेरे साथ आप लिख रहे हैं ना? लिख रहे हैं? Yes, sir. आप लिख रहे हैं ना? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, अब नाउ यू हैव टू गिव मी 2 एग्जांपल। चलो, एग्जांपल भी मैं ही बता देता हूँ। आप एक एग्जांपल, जो पहला जो एग्जांपल है वो क्लोराइड आयन को लेकर के लिखिए, और दूसरा जो एग्जांपल है वो हाइड्रोक्सिल आयन को लेकर के लिखिए। चलो,
कोई यहाँ से कॉपी नहीं करेगा, हाँ खुद से करेगा दिमाग लगा के। तो क्लोराइड आयन का जो स्टेबल फॉर्म है वो हम अदर साइड लिखेंगे। तो व्हाट इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन? Cl2. वेरी गुड। मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है और गैसेस में एग्जिस्ट करता है, तो हमने इसका स्टेबल फॉर्म लिख दिया है। ये एक्वस है, आयन हमेशा एक्वस मीडियम में होती है। अच्छा, तो अब हम इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम हैं। इस वजह से बैलेंस करने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? 2 क्लोराइड आयन, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। वेरी गुड। तो अगर आपने राइट हैंड साइड लिखा है, इट मींस इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज the 2 chloride ions has lost 2 electrons and converted into chlorine molecule or gaseous molecule. Have you understood? Yes. Yes, सबको समझ में आ रहा है? मुनव्वरा एंड इकरार, अल्फिया, अर्शिमा, फिरदौस, मीर। यस, अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं आया, बिना झिझक आप मुझे पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज। चलो आप सेकंड इक्वेशन खुद से करो, नोबडी विल लुक हियर एंड देयर, जस्ट प्योरली डू बाय योर ओन। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन का चार्ज्ड फॉर्म है तो राइट हैंड साइड में इसका जो डिस्चार्ज फॉर्म होगा वो क्या होगा? यस, molecule. O2. What is the formula of oxygen molecule? What is the formula of oxygen molecule? It is diatomic molecule, it is gases. और हाइड्रोजन यहाँ पे कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? What is the neutral form of hydrogen? Water. Yes, it will exist in the form of water. क्योंकि अभी ये रिएक्शन हमने अभी भी किया था उधर पे। हाँ, अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होना चाहिए? एटॉमिकली, एलिमेंटली और इलेक्ट्रिकली। तो सबसे पहले आप देखेंगे एटॉमिकली कैसे बैलेंस करेंगे इसको, या एलिमेंटली कैसे बैलेंस? एलिमेंटली तो बैलेंस है ही, एटॉमिकली कैसे बैलेंस करेंगे? ये ऑड है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑड है, तो इसे क्या करेंगे? Even. अब 4-4 हो गया ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देंगे, तो हो गया ना बैलेंस। और क्या ये इक्वेशन इलेक्ट्रिकली बैलेंस है? No. नहीं ना। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे और कितना इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना पड़ेगा आपको? 4 electrons right Very side. good. 4 electrons right hand side you have to place. Okay, so this becomes what? Oxidation reaction. Clear? समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Everybody have understood? Nobody is having any problem? Yes, sir. Okay. अभी मैं एक चीज और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। वो कौन सी चीज है कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। वाटर जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो क्या आप वाटर को लेकर के आप वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन और वाटर का रिडक्शन रिएक्शन लिख सकते हैं? थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा आपको, ब्रेन लगाएंगे तो आप कर सकेंगे। मेरा सवाल मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे वाटर को लेकर के, my third category of example of oxidation reduction is what? With water. So how I will show the reaction of oxidation and reduction by taking the example of water. Yes, सबने यहाँ तक लिख लिया है? चलो हाँ बोलो कि ना बोलो, जल्दी लिख लिया है तो आगे बढ़ेंगे, सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। Yes. Yes, sir. चलो एक नई कैटेगरी बनाओ। अब तक आपने दो कैटेगरी के एग्जांपल्स दे दिए, अब हम थर्ड कैटेगरी के एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। वो क्या है? By taking a general example of water and showing oxidation reduction in both the categories. अब ध्यान से सुनेंगे, we have to put a full attention over here. कोई सामने नहीं होना चाहिए सिवाय आपके किताब के, और कोई भी सामने नहीं होना चाहिए। फुल अटेंशन यहाँ पे दे दीजिए। देखिए वाटर, आपको पता है ना कि वाटर को जब आप आयनाइज करते हैं, तो वाटर में से कौन सी आयंस प्रोड्यूस होती है? कौन बोलेगा वाटर में से कौन सी आयन प्रोड्यूस होती है? वाटर को OH minus ions, H plus ions. वेरी गुड, H प्लस आयन। मेरे साथ लिखती भी रहिए साथ में, H प्लस आयन और OH माइनस आयन लिखिए मेरे साथ। देखिए लिखेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको समझ में भी आएगा।
लिखिए ये इक्वेशन लिखिए कि जब वाटर आयनाइज होता है, भले ही वाटर बहुत ही पुअर कंडक्टर है, पुअर इलेक्ट्रोलाइट है ना, लाखों में कुछ ही मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर रिडक्शन की कॉलम में ये एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं रिडक्शन के कॉलम में ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब ये वाटर ने दो आयंस को प्रोड्यूस किया, जिसमें से एक कैटायन है और एक क्या है, एक क्या है, anion. एनायन है। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से फर्दर जब मुझे रिडक्शन रिएक्शन लिखना है तो इन दोनों में से कौन सी आयन रिड्यूस होगी? H+ आयन रिड्यूस होगी कि OH- आयन रिड्यूस होगी? H+ आयन। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा? हु विल गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव स्पीशीज है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव आयन ना। So hence I will say the H+ ion of the water will combine with the electrons to form what? Hydrogen molecule na? Arey yes or no? Yes sir। Yes, sir. So can I say कि H+ ion is taking one electrons and forming hydrogen molecule? So if I was suppose want to balance this equation, so suppose if I take half moles of hydrogen, so now this equation become balanced. Now my second equation has become balanced or not? Yes or no? Yes, sir. Is it balanced in all the three ways? है, बैलेंस ही है ना? तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट? If I add this two equation, what I will get? Come on, which is the intermediate over here? Which is going to cancel? H+ ion. H+ Very good, ion H+ ion get cancelled. है ना, B में रिएक्टेंट के साइड है और A में प्रोडक्ट के साइड है, तो कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो अभी हमें जो नेट रिएक्शन मिलेगा, जो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा, लिखिए इसको मेरे साथ, लिख के रहिए आप। तो क्या मिलेगा आपको? वाटर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन undergoing reduction to form what? To form half mole of hydrogen gas liberation and 1 mole of OH- ion. Oh, so we have done the reaction of production by taking water molecule, water molecule. These are our products, these are our products. Is this equation is balanced in all the three ways? Yes, it is balanced. If you want, you can check. दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, टोटल चार्ज -1 का आ रहा है, वहाँ पे भी टोटल चार्ज -1 का आ रहा है। सबने लिख लिया ये इक्वेशन को? Yes, sir. Yes sir। सबको समझ में आया? Everybody understood this? हाँ या ना? बाकी लोग बोलने के फेवर में नहीं है। Yes, चैट sir. बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, अपनी आवाज़ आप सुनाना नहीं चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ। चलो आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ। अब यहाँ पे वाटर को लेकर के आपको क्या लिखना है? क्या लिखना है? Oxidation. चलो खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से भी थोड़ी कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। मैंने आपको हिंट तो ऑलरेडी दे दिया है। वाटर सबसे पहले क्या होगा? आयनाइज होगा, दो आयंस प्रोड्यूस होंगी। फिर आपको सेकंड इक्वेशन में फैसला करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H+ आयन लूज करेगा कि OH- आयन लूज करेगा, और जो भी लूज करेगा उसको ले लो और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो, और राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा आप खुद सोचो, और दोनों को ऐड कर लो, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में you have to ionize the water and it will produce H+ and OH- ion. Now since you are doing oxidation, and oxidation means loss of electron, so out of these two ion, which will going to lose electron? OH- ion. Very good. OH- ion is going to lose the electron. So our next equation will be by taking OH- ion. अच्छा, OH- ion कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? अरे -1 चार्ज है इसके ऊपर, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में ये करेगा ना लॉस, 1 electrons. है ना? अच्छा, बाकी और क्या चीजें होंगी इसके साथ? ऑक्सीजन का जो स्टेबल फॉर्म है वो क्या है? O2, और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा? वाटर के फॉर्म में ना, H2O के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना ऑक्सीजन। तो
यस, क्या मेरा जो बी इक्वेशन है क्या वो एलिमेंटली, एटॉमिकली और इलेक्ट्रिकली बैलेंस है? नो सर। नो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताइए आप? ऑक्सीजन ऑड है, उसको इवन करेंगे। ऑक्सीजन ऑड है, उसको इवन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4। तो अगर यहाँ पे 4 करूँगा तो ऊपर वाले इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि ये 4 OH माइनस साइन कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से ऊपर वाले को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब। तो ये क्या आ जाएगा? 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल फॉर्म 4H प्लस आयन एंड विल ऑल्सो फॉर्म 4OH माइनस आयन। तो अब ए और बी दोनों इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 करना पड़ेगा ना। यस, चेक कर लो, दोनों इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है। यस, यस सर। चेक कर लो, मैं आपको फुल टाइम दे रहा हूँ, कोई घाई नहीं है, अपने को आराम से करना है अपने को ये चैप्टर। हाँ, बैलेंस है क्या? यस, एनीबडी कैन आल्सो कन्फेस, आप गवाही दे सकते हैं कि यस सर। बैलेंस है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज कैंसिल हो जाएगी? बोलो, कौन सी चीज कैंसिल होगी? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन, ओके, 4OH और 4OH ये कैंसिल हो जाएगी। और कौन सा चीज कैंसिल होगा? गौर से देखो, वाटर भी क्या कैंसिल होगा? लेफ्ट हैंड साइड में ए इक्वेशन में 4 मोल्स ऑफ वाटर है, राइट हैंड साइड में बी इक्वेशन में 2 मोल्स है, तो ये 2 मोल्स तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से क्या यस बन सर। जाएगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर। सही किया मैंने, है ना। वाटर भी देखो ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो ये बी वाला जो 2 मोल्स ऑफ वाटर है वो तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और वो जो 4 ऑफ मोल ऑफ वाटर ए में है वो रिड्यूस होकर के 4 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोई चीज़ और कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? 2 मोल ऑफ वाटर, राइट। कौन सा रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन। और क्या मिल रहा है हमें? 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आपको ओवरऑल रिएक्शन समझ में आया? इसको भी चेक कर लो, क्या ये एटॉमिकली, एलिमेंटली और इलेक्ट्रिकली बैलेंस है, अपने दिल की तसल्ली के लिए। 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, एटॉमिकली एलिमेंटली बैलेंस है। अगर आप चार्ज वाइज चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब टोटल चार्ज 0 है। अच्छा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 चार्ज स्पीशीज है, एक हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का नंबर इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। तो ओवरऑल चार्ज तो वहाँ पे भी तो 0 आ रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ये सारी चीज़ें ना आपको इनिशियली समझ में आ जाएगी ना, तो जब हम इसके रिएक्शंस करेंगे, जब हम सेल्स को कंसिडर करके उसके अंदर के जब रिएक्शंस दिखेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से अगर आपको समझ में आ गई है तो वो रिएक्शन लिखने में आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिख लिए सबने? यस सर। यस और नो? हो गया सबका लिख करके? यस सर। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आज हमने जितनी भी रिएक्शंस किए, देखिए एक बार लिखने से नहीं आता है। आप बोलेंगे अरे सर ने आज मुझे पढ़ा दिया है तो मेरे को तो एकदम याद हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप इसको 3-4 बार दोबारा सारे रिएक्शंस को नहीं लिखेंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी नहीं। इसलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग जो है वो 2 इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, और किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए प्रोड्यूस करते हैं, उसका मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन और सेल रिएक्शन सब करके बताऊंगा। ठीक है, वो हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि आज जितने भी रिएक्शंस आपने किए हैं उसको आपको क्या करना है? क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। कुछ और इक्वेशंस को लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप ओवर हियर, विल मीट अगेन टुमारो। आपसे देखो अभी अगले हफ्ते से क्लास जब ऑफलाइन शुरू हो रही है तो शाम के लेक्चर तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो अगले हफ्ते से सिर्फ सुबह का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ मेरा ही होगा, मॉर्निंग का, ठीक है, 9 बजे का। तो मेरा भी ये चैप्टर के लिए कंटिन्यूस रोज लेक्चर होंगे ताकि हम ये पोर्शन कंप्लीट करें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ना टर्मिनल एग्जामिनेशन का ऑर्डर दे दिया है और बहुत सारे कॉलेजेस में टर्मिनल एग्जामिनेशन के पोर्शन भी उन्होंने बता दिया है, लेकिन अपनी कॉलेज में, महाराष्ट्र कॉलेज में अभी तक पोर्शन आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा और हो सकता है कि आपका टाइम टेबल भी आ जाए, तो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन हो सकता है या होगा, क्योंकि सब कॉलेजेस में हो रहा है तो आपका भी होने वाला है, ठीक है। तो आप पढ़ना शुरू कर दो और शायद ये चैप्टर हम लोग रखें, या अगर आज नहीं रखेंगे तो कल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो बोर्ड का एग्जाम देने वाले, फाइनली आपका तो मेन टारगेट बोर्ड है, और बोर्ड में तो जितना जल्दी पोर्शन कवर हो जाएगा तो इतना अच्छा है, ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, अगर टर्मिनल एग्जामिनेशन में नहीं भी आएगा तो यू डोंट थिंक दैट कि दिस इज नॉट ऑफ यूज, ठीक है। सो इवनिंग में हम लोग दोबारा मिलेंगे, आज शाम के लेक्चर में 5 बजे फॉर अल्डिहाइड्स एंड फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आज का लेक्चर सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे एंड स्टडी हार्ड, ओके।